work home. I work this home. Sorry. I work home. मैं घर का काम करती हूँ. I work I work home. मैंने घर का काम किया. Who is ready? Didi, please put my household chores in the place of home. Please put household chores. My household chores. Come again, Shivang. Shivang, my house. Whole chores in place of Shivang, home. please. Wait. Who is ready? I'm ready. Uh, I ask to all of you. मैं आप सभी से पूछती हूँ. I asked to all of you. मैंने आज आप सभी से पूछा. There. Who is ready? I'm ready. I act with us. With हम सब us, मिल I act with my mom. मैंने मॉम के साथ कार्य कर मैं अपनी मॉम के साथ कार्य करती हूँ. Didi, the Come act again, is Neha. no, Didi. Please make my confusion. I have a confusion in act verb. That act is a verb for that दूसरे के जैसे कार्य करना, है ना? Which is pretend ना. Act, प्रिटेंड करना, दैट इज दूसरे के जैसे कार्य करना. Act. एक्ट होगा ना. okay, I Neha act. Didi, please keep patient. Okay. Deepika Didi, act means have you have you heard actress? एक्ट्रेस, यस. Act मतलब they are doing acting. ओके, लाइक आई एक्ट लाइक अ प्रिंसेस. Yes, like this. यस यस, हाँ. यू आर राइट, शिवांग. I when Please. Neha Didi made their first sentence, so I am getting confused. How she act? But But I am not saying sorry. most of the time we use like we play that role, this role. In that We case play, we हाँ, use act also, है act. ना? Yes, we We play use that. हाँ. So But what the Hindi according to Hindi of Neha Didi, their work is the verb is होनी चाहिए work, not act. According to Hindi of Neha Didi. okay, come again, Neha. Uh, I act. I act like my mom. मैं अपनी मॉम के जैसे कार्य करती हूँ. I acted like my mom. मैं अपनी मॉम के जैसे कार्य Sorry, मैंने अपनी Neha. Come again, Neha, please. I act like my mom. मैंने मैंने अपनी Just मॉम के like, जैसे just like, just like. ओके सेइंग जस्ट लाइक ना. ओके आई एक्ट जस्ट लाइक माय मॉम. मैंने अपनी मॉम के जैसे कार्य करती हूँ. आई एक्टेड जस्ट लाइक माय मॉम. मैंने अपनी मॉम के जैसे कार्य किया.
Repeat your Hindi only the first sentence. The Hindi of first sentence repeat. मैं मैं अपनी मॉम के जैसे कार्य करती हूँ। ओके ओके And I also हु Neha. इज रेडी? Didi, Deepika Didi is buying a car, so he is using मैं कार लेता what she use Deepika Didi, what are you using in past when you are buying a car? Means the bus खड़ा है और साइकिल जा रहा है. She is using Yes, like this. Who has I do distributed like verb that. today? Hi guys. Who has distributed verb today? Please give me above. As far as I think, Deepika Didi distributed the verb. Deepika. Why you are late today, Namrata? No, Oh, Shivang, please finally don't ask. Deepika is distributing. Deepika Okay. distributing, na? Then, No, okay. Namrata Dwivedi, your verb is khana, that is take, took, taken. so Deepika Didi repeat you at that one Hindi only. No. Please, Stop it today. no, Stop it today. not Khana kya na? as it is. Khana. 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 Okay. Only the मेरे correct को बस Hindi, एक not परमिशन चाहिए थी, अब नहीं सुनूंगी. जय श्री राम. अरे correct हिंदी बोलो. तुम बताओ क्या है करेक्ट हिंदी? आपकी नहीं यार, उनके सेंटेंस की. वो गलत तुम बोल ही बताओ रहे. ना. तुम करेक्ट करो ना. हिंट मैंने तो वो दे दिया समझ भाई. कर दिया था ना. आई नो कि वो गलत था. तो हिंट तो दे दिया, अब हिंट के हिसाब से सही कर लो. है ना निधि दीदी? बस खड़ा है, साइकिल जा रहा है. What should I say, Shivang? लड़का खड़ी है. करेक्ट है हिंदी दीपिका दीदी. I'm not able to hear you. Sorry. Am I not audible? Please give her But actually, to Namrata. what Nidhi, come again, please? Come again, Nidhi. I say, please give her the Amrita didi got the verb. So now she wanna make. Amrita didi, are you ready? Amrita didi, I take. I'm ready. are you ready for making the sentence? I take. Am I audible? Okay. I take veg Manchurian in dinner. मैं वेज मंचूरियन डिनर में खाती हूँ. आई टुक वेज मंचूरियन इन डिनर. मैंने डिनर में वेज मंचूरियन खाई. हु इज रेडी? दीपिका दीदी May I? हिंदी बना दो. May I Who is make इंग्लिश ready? सही थी, आप क्यों हिंदी? Don't harass us, Please Shivang. rest. Please don't harass us.
No, if she is not rectify her mistake, so she is doing the same mistake. That's why I'm saying ki repeat a Hindi only, not English. Shivang, is anybody rest to call them? Sir is asking who is No, rest. sir. Nobody is Nobody. there. All are done, sir. Okay, have you got any problem in any sentence? Yes, sir. I got one problem. That I have buy. I have to buy a car, a new car. ये have to chapter हो गया दीपिका. Yes, sir. This is not present simple. That's why I passed my chance, and Shivang again and again tease me, please uh, rectify Sir, your mistake. Can I rectify I am my just mistake? saying, I know this is the have to chapter. That's why I passed this. no, I am just Deepika, saying that you are. speak with me. Generally, Generally, I have I have 1 teaspoon 1 teaspoon sugar sugar in my tea. in my tea. आमतौर पर मैं आमतौर पर मैं अपनी चाय में अपनी चाय में 1 चम्मच शक्कर लेती हूँ. 1 चम्मच शक्कर लेती हूँ. But But I had I had 2 spoons of 2 spoons of sugar sugar today. today. लेकिन आज मैंने लेकिन आज मैंने 2 चम्मच शक्कर ली. 2 चम्मच शक्कर ली. दोस्तों, मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने टीस्पून ऑफ शुगर शब्द सुना होगा. वो एक नाप होता है. मार्केट में टीस्पून के नाम से चम्मचें बिकती हैं, जो आपके घरों में शक्कर के डिब्बे में और चाय पत्ती के डिब्बे में, मतलब आमतौर पे घरों में उस नाप का प्रयोग होता है. वो एक पर्टिकुलर नाप ही होता है, तो उसको टीस्पून कहते हैं. और आप अगर कोई कुकिंग कॉन्टेस्ट देखते हैं बच्चों, कुकिंग के वीडियो देखेंगे तो उसमें नाप जब बताती हैं वो, तो टीस्पून ही बोला जाता है. आपको सभी को सीसी ऑन रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कम अगेन बोलते हैं. सब कुछ लिखा हुआ तो आ रहा है बेटा. एवरीथिंग इज कमिंग ऑन द स्क्रीन. टीस्पून ऑफ शुगर. Okay, so it was the first confusion with Deepika. I removed this confusion. Deepika, tell me one thing. क्या वर्ब आगे नहीं बढ़ रहे हैं? अभी हैव टेक पर ही चल रहा है. आगे बढ़ाते हो ना रोज? नहीं सर, पीछे वाली दी थी पहले, इसलिए आज आगे से दे दी. ओके, एक सीक्वेंस पूरा मेंटेन करते चलो. भले ही तुम्हारे रजिस्टर में कुछ और हो, इनके रजिस्टर में कुछ और हो, लेकिन आगे बढ़ते जाना है. आगे की क्रियाएं देना है. और हर व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं दूंगी या मैं वर्ब नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. और अगर उसको लगता है कि उसका रजिस्टर मेंटेन्ड नहीं है, तो वो किस व्हाट्सएप में इतनी अच्छी सुविधा है, केवल एक रिक्वेस्ट भेजे कि आई नीड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ब. तो मेरे ख्याल से सब लोग अपने रजिस्टर की फोटो खींच के भेज देंगे. आपको जिसकी हैंडराइटिंग समझ में आ रही हो उसको लिख लो और बाकी को डिलीट कर दो. लेकिन आपके ग्रुप में ऐसी एक दूसरे से मदद लेने की एक्टिविटी अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है.
Okay, anyways, come to the point. I solved the problem of Deepika. Is anybody else having any other problem? Please tell me. To be frank, बिना संकोच के बताए. सर एक्चुअली एक्ट वर्क तो ओके, नेहा तुम्हारे उसको दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही थे. आई एक्ट लाइक माई मॉम. मैं अपनी माँ की तरह कार्य करती हूँ. आई एक्टेड लाइक माई मॉम. मैंने अपनी माँ की तरह काम किया. इज करेक्ट. मैं तुमसे एक सेंटेंस और बुलवा देता हूँ. बोलना साथ में अनम्यूट करके. आई एक्ट स्मार्टली. इट्स माई ट्री. मैं स्मार्टली कार्य करती हूँ. मैं स्मार्टली कार्य करती हूँ. आई एक्टेड स्मार्टली. आई एक्टेड स्मार्टली. मैंने स्मार्ट रूप में काम किया. मैं स्मार्ट रूप में काम किया. उसका सही हिंदी आ नहीं रहा बेटा, लेकिन सेंटेंस इंग्लिश का खूबसूरत. ओके, योर सेंटेंसेस वर राइट नेहा, लेकिन हमने तुम्हें एक एक्सटेंशन और बताया. एक्चुअली ये एडवर्ब है. हम आगे चल के देखेंगे. जिस शब्द के अंत में ly लगा हो वो एडवर्ब भी होता है. बिल्कुल 100%. Now, is anybody having any doubt or confusion? Yes, sir. Mini. Yes, sir. My sentence is I do love my new pets. This is wrong. दोस्तों, ये जो कंफ्यूजन मिनी को है, ये कुछ दिन तक तो हर हिंदी मीडियम के बच्चे को होता है. वो ये समझता ही नहीं है कि हर वर्ब के अंत में करना अपने आप में लगा हुआ है. तो शिवांग जो सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव दे रहा था किसी को, नाम यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है. तुम हमारे साथ बोलो मिनी, अनम्यूट करके. आई डू माई हाउस होल्ड चोर्स क्विकली. मैं अपने घर का काम फटाफट कर लेती हूँ. मैं अपना घर का काम फटाफट कर लेती हूँ. आई डिड माई हाउस होल्ड चोर्स क्विकली. मैंने अपने घर का काम योर वॉइस इज लो मिनी. मैंने अपने घर का काम फटाफट कर लिया. Thank और you. एक सेंटेंस बनाओ हमारे साथ. Yes. आई डू एवरी वर्क ऑनेस्टली. मैं हर कार्य ईमानदारी से करती हूँ. मैं हर कार्य ईमानदारी से करती हूँ. आई डिड दिस वर्क ऑनेस्टली. मैंने ये काम ईमानदारी से किया. मैंने यह काम ईमानदारी से किया. थैंक यू सर. Anybody else is having any doubt? Okay, nobody. Thank you. Deepika, Every net issue, can I left actually network issue?
बेटा बहुत नेटवर्क इश्यू तुम्हारा चल रहा है। निधि के उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, डिवाइस प्रॉब्लम है। शी इज नॉट क्लियरली ऑडिबल, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। लीव, ज्वाइन अगेन। ओके, Deepika, what did we see in the previous class? Sir, we did see just past simple in previous class and some verbs also, and that's it, sir. Okay. Shivang, can you tell me? Sir, we saw the past simple. We are making the sentences of past simple. Okay. सभी अपने मोबाइल को लेटा लें। Make your mobile horizontal and pin me. Double tap me. Is Roshni present? Roshni, are you there? No, sir, she is, as far as I think, absent today. Yes, sir. Yes, sir. Oh, I am you present. okay? Shivang, did Neha join? No, sir. She she did not join. She did Okay, not. she's trying. Okay. दोस्तों, पिछली बार हम अगले टेस्ट में कदम रख चुके थे, थोड़ा सा देखा था, फिर कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे तो मुझे रोकना पड़ा। So, Neeta ji, what was the heading of the next tense? So the heading of next tense should be future indefinite or future simple. नीता जी, ये शुड जो है आपके जुबान पर इस कदर हावी हो गया है कि मैं किसी भी चैप्टर में पूछता हूँ, आप शुड में जवाब दे देती हो। Sorry, sir. Who can answer my question correctly, please? नीता जी से शॉर्ट बोलता होगा, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया। Who can answer my question properly? So the next heading is future simple tense or indefinite future. Okay, thank you. Now let me ask this question to Deepika because her transmission is absolutely correct. Sir, the next, What was the heading of the chapter? sir, the heading was future simple tense. अब तुम किसी अच्छी आवाज वाले से पहला क्वेश्चन कर लो। Okay. Neeta ji, what was the second heading? नहीं, ये वाला मत करो, इससे अगला क्वेश्चन करो बेटा। Okay. What was the formula? नहीं, ये इसमें नहीं लिख लिया था सर। आई नो, लेकिन क्वेश्चन करना है। Okay, sir. Neeta ji, what was the identification? नहीं, चलो शिवांग पूछ लेगा, नीता जी से पूछ। नीता जी, what was the first point?
नहीं नहीं, ये भी नहीं। चलो हम ही पूछ लेते हैं। किससे पूछें? चलो नम्रता, what should be the first point? Sir, the first point should be identification. पहला बिंदु क्या होना चाहिए? सर, पहला बिंदु आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पहचान। अब अगला सवाल तुम रोशनी से पूछो। रोशनी, what should be the identification? The identification was खाएगा पिएगी। नम्रता, इसने तो गलत जवाब दे दिया। तुम और कोई कैंडिडेट तलाशो। मिनी से पूछ लो। Mini, what should be the identification of future simple tense? The identification of future simple tense is जाऊंगी, खाएगा, पिएगा, and so on. मिनी, तुम यही सवाल, हाँ यही सवाल तुम रोशनी से पूछ लो। Roshni di, what should be the identification? The identification of should be sorry. The identification of future simple tense is जाऊंगा, खाऊंगा, पिएगी, and so on. Sorry. You are right. It will do. अब तुम अपने पसंद के किसी कैंडिडेट से सेम क्वेश्चन करो। Mini, what should be the identification? Nimi is done. Nisha, what should be the identification? The identification should be जाऊंगी, खाऊंगा, पीऊंगा। Nidhi, what should be the identification? The identification should be खाएगी, पिएगी, जाएंगे, and so on. निधि, अगला सवाल नेहा। कर शिवांग से। अगला सवाल। Okay, sir. Shivang, what should be the next heading? Sorry, the next point. What should be the next point? शिवांग, तुम पूछो। शिवांग। नीता जी, what should be the next point? नहीं, चलो मैं पूछता हूँ। दीपिका, what should be the second point? Sir, the second point should be formula. दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? सर, दूसरा बिंदु फॉर्मूला होना चाहिए। अब म्यूट कर लो। अब हम ये सवाल कुछ जिससे हम पूछेंगे कि वो वही जवाब देंगे, बाकी और कोई नहीं देगा। रोशनी, आर यू फ्री? कोई उससे बात कर रहा था, उसने खिड़की बंद कर दी। फ्री ना? वो देखो। रोशनी, जब फ्री हो जाओ तो बताना। ये बड़ी मुश्किल है। घर में बैठ के क्लास अटेंड करने का एक नुकसान ये भी होता है। रोशनी, 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 देखो कितनी बातों में लगी हुई है वो। मस्त। Yes, sir.
कौन आ गौरव? कौन है आ गौरव? Sir, she is sighing. As far as I think, her husband is there. तो बोलो ना, बे आ गए रहे, हमरे बे आ गए रहे। चलो, पति परमेश्वर से बातचीत अगर पूर्ण हो गई हो तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, रोशनी? What should be the formula, Roshni? The formula should be subject plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब तुम यही सवाल निशा से कर लो। निशा जी, what should be the formula of future simple tense? If you are mute, please unmute yourself, Nisha ji. Nisha ji is absent. Minnie, what should be the Ask this question to Minnie. Minnie, what should be the formula of future simple tense? The formula of future simple tense should be subject plus verb की third form plus object plus extension. Nice. Ask the same question to Namrata. Namrata di, what should be the formula of future simple tense? The formula of future simple tense is subject plus verb की first form plus object plus extension. Namrata, ask the same question to Neeta ji. Neeta ji, what should be the formula of future simple tense? The formula of future indefinite tense is subject plus will plus verb की first form plus object plus extension. Neeta ji, ask the same question to Deepika. Deepika ji, what should be the formula of future indefinite tense? So the formula should be subject plus ismr plus first form of the verb plus ing plus object plus extension. Sorry. Okay. Is Nisha back? No. Sorry, I think Sir, will I shall try one more time. Okay, you can try. Should I ask you what should be the formula? Yes, sir. Namrata. Sir, formula should be subject plus will plus verb की first form plus object. Okay. Okay, Namrata, ask Shivang. Shivang, what should be the formula of future indefinite tense? The formula of future simple or future indefinite tense is subject plus will said plus verb की first form plus object. First form of the verb plus object. Shivang, ask this question. रोशनी, तुम हो कि पतिदेव को खाना परोसने चली गई? Ask this question to Nidhi. Shivang. Nidhi Didi, what should be the formula of future simple tense? The formula of future simple tense should be subject plus will oblique shall plus first form of the verb plus object plus extension. Yes. Thank you. Mute yourself.
दोस्तों मैं चाहता था कि ये गलती इनके अंदर से बाहर निकल जाए और खत्म हो जाए। हम जो हिंदी में माध्यम वाले छात्र छात्राएं होते हैं, हमारा सीधा सीधा कैलकुलेशन होता है कि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आया और पास्ट सिंपल में सेकंड आया तो फ्यूचर सिंपल में थर्ड फॉर्म आएगा। ये हमारा कैलकुलेशन ही होता है और मैं ये चाहता था जानबूझ के कि ये बाहर निकल जाए एक बार गलती, तो हमेशा से इसके ये गलती दूर हो जाए। तो दोस्तों फ्यूचर टेंस जो है, कोई भी भविष्य काल है इंग्लिश में, बिना विल या शैल के संभव है क्या? कोई चलो No, No, sir. sir, it's impossible. तो दोस्तों मैं आपको आज थोड़ा सा एक परेशान करने वाला शॉकिंग समाचार देता हूँ। फ्यूचर टेंस बिना विल और शैल के भी संभव है। कैसे, जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मतलब जानने के लिए कंटिन्यू कीजिए झांसर क्लासेस। समय आने पर हम देखेंगे कि बिना विल और शैल के फ्यूचर कैसे बनता है, लेकिन अभी तो विल और शैल लगाना जरूरी है। और विल और शैल के बाद रोशनी हमेशा क्रिया का पहला ही रूप आता है, सर दूसरा बी नहीं आता। चैप्टर में आता है ना बेटा हमने व्हेन पहले वी से बहुत सारे शैल कम। सेंटेंस इंटरेक्टिव इडियम में दे रखे हैं जो फ्यूचर के हैं। एक आध दो किसी को याद आओ तो आ जाए तो बताना इंटरेक्टिव इडियम, तब तक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। सर, I will try my best. मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगी। It will do. चलेगा। बाकी लोग इस फॉर्मूले को लिख लें और जिसको याद आ रहा है वो बोलता भी जाए, बिना परेशान हुए, बिना रजिस्टर फड़फड़ाए। रोशनी बेटा एक There बार will ये be no problem. कम अगेन। There will be no problem. मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब रोशनी इस फॉर्मूला को एक बार बोल दो और उसके बाद किसी का भी नाम ले लो, वो भी बोलेगा। Subject plus will oblique shall plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस बेटा ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा अपन इंग्लिश कर दें तो पूरा इंग्लिश हो जाएगा। फॉर्म ऑफ द फर्स्ट वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब तुमने जितना बोला वो पूरा इंग्लिश हो गया। किसी का नाम ले लो। नहीं, subject plus will oblique shall plus first form of the verb plus एक ठंडी object Sorry, ठंडी come वाला again. सॉल्व, ठंडी वाला Mini, सॉल्व। come again, please. subject plus will oblique shall plus first form of the verb plus object plus extension। निधि दी। Subject plus will oblique shall plus first form of the verb plus object plus extension. Neha. Subject plus will oblique shall plus first form of the verb plus object plus extension. Deepika di. Subject plus will shall plus first form of the verb plus object plus extension. Namrata. Subject plus will oblique shall plus first form of the verb plus object plus extension। नीता जी। Subject plus will oblique shall plus first form of the verb plus object plus extension. Shivang. Subject
plus will or shall. दोस्तों, हम स्पोकन इंग्लिश वाले हैं, इसलिए हम शैल का प्रयोग नहीं करेंगे कहीं पे भी, लेकिन लिखवाना जरूरी रहता है, लिखा होना चाहिए, ताकि आप जब बच्चों को समझाएं अपने या कभी ग्रामर की बात निकले तो उससे जिक्र कर सके। बट एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, वी डू नॉट यूज शैल। स्पोकन इंग्लिश में शैल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। कुछ जगहों पर शैल का प्रयोग बहुत खूबसूरत लगता है विनम्रता के लिए, तो वो मैं भी बीच बीच में आपसे करूंगा और आपके जुबान पर रखवा दूंगा। जैसे शैल वी स्टार्ट, कोई भी सामने बड़े लोग अगर बैठे हों, वरिष्ठ लोग, तो अगर आप ऐसे बोलेंगे शैल वी स्टार्ट, शुरू करें, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। वहां शैल का प्रयोग जरूर करें। ये मे जैसा प्रयोग होता है, जैसे मे आई कम इन सर बोलते ना, बिल्कुल वैसा ही माना जाता है, सम्मानजनक, बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, हम हमेशा पहला राउंड आई से शुरू करते हैं, तो पहला राउंड हम आई से शुरू कर रहे हैं। दीपिका सबसे पहला सेंटेंस बनाएगी, शिवांग का नाम पुकारना। शिवांग नम्रता दीपिका, नम्रता नीता जी का नाम पुकारना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। वर्ब सबको बदलना है दोस्तों, सब्जेक्ट आई रखना है और विल का प्रयोग करना है। दीपिका, हियर वी गो। I will do my work with my own. मैं अपना काम स्वयं करूंगी। शिवांग। I will be a आर्मी ऑफिसर। मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। नम्रता दीदी। दोस्तों, ये वाक्य अभी यहाँ पे स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये बी फ्यूचर हो जाता है। बी क्रिया का प्रयोग फ्यूचर सिंपल में करते साथ ही वो बी फ्यूचर हो जाता है। लेकिन शिवांग को मन में ये बात है कि जब भी बी क्रिया का प्रयोग करते हैं तो सर अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई और क्रिया रखो शिवांग, एक और सेंटेंस बोल दो। I will play गिटार। मैं गिटार बजाऊंगा। नम्रता दीदी। I will remain calm. मैं शांत रहूंगी। थैंक यू नम्रता। शिवांग, ये जो क्रिया है ये प्लेन वर्ब है, ये बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बी के नीचे रिमेन लिखवाई है कि जब टेंस की बात हो तो रिमेन रखो। गुड। Who is ready? I am ready. I will go to the market yesterday. मैं कल मार्केट जाऊंगी। सॉरी, जो निकल गया है, कम अगेन। कैसे जाओगी बेटा, यस्टरडे तो कल निकल गया है। अच्छा सॉरी सॉरी सर, यस्टरडे निकल गया है कल, संडे था यस्टरडे। यस सर। I will go to the market today. मैं आज टुमारो tomorrow. I will go to the market tomorrow. मैं कल मार्केट जाऊंगी। Who is ready? I am ready. I am ready. After you. I will do it now. मैं इसे अभी कर दूंगी। नेहा दी। एक सेकंड, एक अच्छा शब्द देते जो इंग्लिश मीडियम वाले बहुत यूज करते हैं, हमें सुन लेना मिनी, उसके बाद बोलना। और थोड़ा अब हमें प्रैक्टिकल सेंटेंस की आदत पड़ गई है, शिवांग को भी है, तो देखना इसको। नो प्रॉब्लम मम्मा, आई विल डू इट राइट नाउ। कोई बात नहीं मम्मा, मैं इसे अब भी कर दूंगी। बोलो। नो प्रॉब्लम मम्मा, आई विल डू इट राइट नाउ। कोई बात नहीं मम्मा, मैं इसे अब भी कर दूंगी।
Can I make another sentence, sir? बेटा एक मिनट चेक कर ले हु इज रेस्ट, फिर अपन सेकंड राउंड खेलेंगे। I am rest. I will purchase fruits. मैं फल खरीदूंगी। I'm ready. I will deliver my second speech tomorrow. मैं अपनी दूसरी स्पीच कल दूंगी। Sir, am I clearly audible now? Okay. May I make? I will succeed ever. मैं कभी सफल होंगी। I will succeed. मैं सफल एवर होंगी। का प्रयोग कर रही थी, बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम एवर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एवर यहाँ फिट नहीं हो रहा है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हिंदी बताओ तो हम शायद मदद कर पाए। एक्चुअली मैं कभी न कभी सफल होंगी। इसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ, कल मैं एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दूंगा, उसमें ये बनेगा, ठीक है? सर आई एम सिंपल ना, आई विल सक्सीड, मैं और सफल आखिर होंगी। में डेफिनेटली लगा दो तो अच्छा लगेगा। आई विल सक्सीड डेफिनेटली, मैं बिल्कुल सफल होंगी। मैं जरूर सफल होंगी। पूछ लो हु इज रेस्ट। हु इज रेस्ट? I am best. I will fight from corruption. मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा। ये अच्छी गलती है दोस्तों। प्रपोजिशन will definitely suck, ये प्रपोजिशन एक दिन मेरी जान लेके रहेगा। फिल्मी डायलॉग है। Can anybody tell me what should be the correct preposition here? With. To. Sir, to, yeah. No. Sir, of corruption. Please come again, Neetaji. I will fight from corruption. मैं corruption से Through लड़ूंगा। आएगा sir. Through. Against. Against. Yes, sir. It was clicked on my mind. Yeah. Okay. I will fight against corruption. मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा। दोस्तों इसमें मजेदार बात देखिएगा, मैं फिर से दिखाता हूं अपना कैमरा फ्लिप करके। मजेदार बात है, नीचे देखिए ये हिंदी अखबार की कटिंग है। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकाली और प्रदर्शन किए। चित्र मुंबई में आयोजित रैली का है। अब मुंबई के बच्चे हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं, तो ऐसी चीजें हिंदी अखबार में भी हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं कि हमारे घर में इंग्लिश अखबार ही आता हो। कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अरे सर तो इंग्लिश वाले, उनके घर इंग्लिश अखबार आता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, I have totally stopped reading newspaper. Even I do not watch TV news. But for you who is preparing for competitive exam, newspaper reading is necessary. सेकेंड राउंड हम
आई के साथ ही क्यों खेलें, या अगर आई के साथ खेलना है तो चलिए क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं। आप चाहे तो यस में आंसर दीजिएगा, चाहे नो में। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करके देखना चाहता हूँ। दीपिका ने अपनी स्पीच भेजी है दोस्तों, मैं उसको प्ले करके देखता हूँ। अगर आवाज आपको आ रही है तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर सर नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैंने एक्सपीरियंस किया है, नहीं आती है। चलो ठीक है, तो अपन वहां नहीं जाते हैं। उसको व्हाट्सएप ग्रुप में है, सब लोग देखिए। पहला सेंटेंस किसने, दीपिका ने बनाया था। दीपिका, मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, तुम चाहो तो यस में आंसर देना, चाहे नो में, और फिर अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। विल यू commit him for the good results? Yes, sir. I will comment him for the good result. I repeat my question. Watch the screen. I'm changing. Will you commit yourself for good results? You are mute. Yes, sir. I will commit myself for the good result. क्या आप अपने आप को अच्छे परिणामों के लिए बाधित कमिट करेंगे? जी सर, मैं अच्छे परिणामों के लिए खुद को बाधित करूंगी। उसका हिंदी कई बार बिल्कुल मजा नहीं आता है। कमिटमेंट होता है, खुद से होता है, और फिल्म में भी डायलॉग यही है, एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। उसी की वर्ब है कमिट। वादा करना जैसी है, इसलिए मैंने हिंदी नहीं आ रहा था तो इंग्लिश बोल दी। ओके, गो अहेड। शिवांग, will you commit yourself for the good? आपको अपना सेंटेंस बनाना है। Okay, sir. शिवांग, will you बी नहीं यूज कर सकते सर। Will you be a good scientist? Is it wrong, sir? Shivang, will you be a good scientist? बी की जगह यहाँ पुरानी बिकम का प्रयोग कर लो, कभी कभी वो भी अच्छी लगती है। Okay. Shivang, will you become a good scientist? You are mute. Yes, I will become a good scientist. क्या आप एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे? हाँ, मैं एक अच्छा साइंटिस्ट बनूंगा। नम्रता दीदी, will you get married? Yes, Shivang, definitely I will get married. दीदी, क्या आप शादी करेंगी? हाँ, निश्चित ही मैं शादी करूंगी। नीता जी, will you try to get up early morning? Yes, Namrata ji, I will try to get up early in the morning. नीता जी, क्या आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करेंगी? हाँ नम्रता जी, मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करूंगी। रोशनी, will you ride your फ्रेंड्स स्कूटी? क्या आप अपने दोस्त की स्कूटी चलाएंगी? सॉरी, रोशनी। देखिए, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ नीता जी। पहले आपको आंग्ल भाषा में पूछना है,
तत्पश्चात यस सर, यस मातृभाषा में। सॉरी सर। रोशनी जी, विल यू राइड योर फ्रेंड्स स्कूटी? Yes, I will ride your friend scooty. Sorry, सॉरी sorry. I Sorry. will try. Sorry, come again. Sorry, I will try नॉट ट्राई। ride Sorry. friend scooty. कम अगेन। Come again, Rosni. I will try friend scooty. नॉट ट्राई। Sorry, you could not listen, na? My question was, will you ride? नहीं, आप पहले 3 का दंड दें नीता जी, बहुत देर हो गई, अब इससे समझ में आएगा। यहाँ व्यक्ति को अच्छा श्रोता और कम अगेन सब दे के रखा है हमने। गिव 3D। नीता जी 3 सेंटेंस बोलिए एरिया। ओके सर। क्राइंग इन वाइल्डनेस, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगराए। सेकंड इज लेड बाय गॉन्स, बी बाय गॉन्स, बीती बाई बिसार दे आगे की सुधि ले। बीती And ताही। हाँ, बीती ताई बिसार दे आगे की सुधि ले। एंड थर्ड इज मिनी तुम तैयार है ना? इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है। इससे चेक हो जाता है कि कौन ध्यान से सुन रहा है। चलिए नीता जी जाने दीजिए, म्यूट कर लीजिए। मिनी आंसर दिस क्वेश्चन। नेहा आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा मिनी दे रही। हाँ, Yes, I will ride my friend scooty. एक छोटी सी गलती है। Only one word. Stupid mistake. I will ride my friend scooty. चलो देखते चेक करते नेहा क्या जवाब देती। नेहा I will. Yes. Yes, I will ride my friend scooty. तुमने भी ध्यान Like से draws like. निधि तुम दे दो उत्तर। ये वेट। Yes, I will ride my friend's scooty. गूगल अपॉस्ट्रोफी एस नहीं ले रहा है, लेकिन वो अपॉस्ट्रोफी एस ही है। दिस इज कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी। यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ अपॉस्ट्रोफी। ऊपर कॉमा लगता है और फिर एस, तो इट इज अपॉस्ट्रोफी एस। कंप्लीट द प्रोसेस नीता जी। नीता जी यू आर म्यूट। हाँ, यस सर। रोशनी सर, मैं आया रोशनी नहीं, Sorry, looking London, talking Tokyo. हिंदी बोलिए, निधि जवाब देगी। जी सर। ओके। निधि जी, क्या आप अपने दोस्त की बाइक चलाएंगी? सॉरी, क्या आप अपने दोस्त की स्कूटी चलाएंगी? हाँ, मैं अपने दोस्त की बाइक जरूर चलाऊंगी, स्कूटी। दोस्तों हाँ। ये कंफ्यूजन रोशनी। करते हैं। एक मिनट रुकना बेटा। दोस्तों ये जितने दोपहिया वाहन है आप सबको बाइक कह सकते हो, और अगर आपने ध्यान दिया हो आपके बच्चे लोगों की बाइसिकल में भी बाइक लिखा आने लगा है आजकल। टेरेन बाइक या ऐसा कुछ न कुछ लिखा रहता है, तो आप सबको बाइक बोल सकते हो। और टेक्निकल जानकारी मैं ये भी दे देता हूँ कि स्कूटी, एक्सिस, एक्टिवा, ये सब जो वाहन है इनकी कैटेगरी को कहते हैं स्कूटरेट।
Scooterate. They are called scooterate. Yes, this is the correct spelling of scooterate. Sometimes Google is taking good rate, but in the first line, Google has taken scooterate. So these bikes are called scooterates. Google is not taking. तो आप बाइक बोले, no problem. Niti, your question, your go. Roshni, will you commute for offline classes? Yes, I will commute offline classes. Sorry, preposition is rest. Commute. Yes, I will commute for offline classes. रोशनी, क्या आप ऑफलाइन क्लास के लिए आना जाना करोगी? हाँ, मैं ऑफलाइन अप क्लास के डाउन? लिए हाँ, मैं ऑफलाइन क्लास के लिए अप डाउन करूंगी। दीपिका दीदी, बी यूज हो गया। दीपिका दीदी, विल यू रेक्टिफाई? बेटा, who is rest? Who is rest? I am rest. Neha, will you rectify your mistake? Yes, I will rectify my mistake. नेहा, क्या तुम अपनी गलती सुधारोगी? दीदी, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। Who is rest? I am rest. And who is rest? Okay, Nisha ji, will you get success anytime? Yes, I will get. No. Will you get success tomorrow? Sorry. Sorry, come again, Neha. Will you get success? नेहा दूसरी वर्ब ले लो। Okay. Will you play folk song? Sorry, Neha, come again. Will you play folk song? Yes, I will. Neha, voice is stopping. Please come again. बेटा, ये सबसे महंगा, दुनिया का सबसे महंगा और अच्छा ऐप है। ये पूरा लिखता जाता है उसको। कहीं पढ़ने में तो दिक्कत नहीं है तुम्हें बेटा? सर, मैंने नोटिस नहीं किया उधर, सॉरी सर। नहीं, अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो एक बार बता दे, तो फिर हम उस दृष्टि से नहीं देखेंगे। नो सर। सॉरी सर, प्लीज नेहा कम अगेन। Neha, your voice is chopping. I will ask to her, na? Nisha ji, will you play folk song? Yes, I will play folk song. निशा जी, क्या आप लोकगीत बजा सकती हैं? चला सकती हैं? सॉरी, चला। You are making in can? Tense. Oh my God! Forget your It chapter. sucks. It sucks. Sorry. It's निशा, badly sucks. क्या आप
यस शिवांग। निशा आप लोकगीत चलाओगी या बजाओगी? हाँ निधि, मैं लोकगीत बजाऊंगी। आ, नम्रता, it is cool today. Namrata, will you take tea? Yes, I will take tea. नम्रता, आज बहुत ठंडी है, क्या आप चाय पियोगी? Yeah, it's too cold today. हाँ, आज बहुत ठंड है, मैं चाय पीऊंगी। It's very So practically sentence. after all, you have offered me, na? Okay. And Nisha, you Nikka? have spoken out of her mouth. Don't worry. Try it another time. Sir, can I use other subject? दोस्तों पहले दो बातें सुनिएगा। अगर आप भी नोटिस करते हैं बारीक चीजें, तो रोशनी की प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। अच्छा ऑब्जेक्ट, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट लगाने लगी है। माई सेल्फ योर सेल्फ का प्रयोग खूबसूरती से किया उसने। दूसरी बात, नेहा की प्रैक्टिकल अप्रोच अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है, इसलिए उसने जो गेट सक्सेस वर्ब रखी थी वो गलत नहीं थी। अगर वो ऐसे पूछ लेती, विल यू गेट सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, तो सेंटेंस प्रैक्टिकल हो जाता। या विल यू गेट सक्सेस क्विकली, क्या आपको फटाफट सफलता मिल जाएगी, तो भी प्रैक्टिकल हो जाता। अब वो पूछ रही थी विल यू गेट सक्सेस टुमारो, तो कोई ज्योतिषी तो है नहीं जो बोल देगा कि तुम्हें कल सफलता मिल जाएगी। बच्चा जा, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा, कल सफलता मिल जाएगी। तो ये इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी है नहीं, वो अच्छे से ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन अभी नहीं सजा पाती है। फिर उसने फोक शौक वाला, निधि उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, वो भी नॉन प्रैक्टिकल सेंटेंस था, इसलिए तुम्हारे मुंह से कैन निकला। सेंटेंस कुछ ऐसा हो सकता था कि निशा विल यू प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी, तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता। निशा क्या तुम मेरे लिए ये गाना बजा दोगी, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता। तो ये आप चाहे तो व्हाट्सएप में सेंटेंसेस सेंड कर सकते हो दोस्तों, और मैं तो उसको चेक नहीं करूंगा, लेकिन कोई ना कोई उसमें अपना सजेशन जरूर देगा, और अगर बहुत ज्यादा गलत हुआ तो मैं उसको फाइनलाइज भी कर दूंगा। तो आप अपने मन से कभी भी कुछ भी सेंटेंस भेज सकते हैं, क्योंकि चेक करने वाले हम बहुत हैं, कोई ना कोई जिसकी नजर पड़ेगी वो चेक करेगा। दोस्तों कल मैं आपको इसका फेस टू फेस दूंगा, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसमें से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फेस टू फेस नाम की इतनी अच्छी प्रक्रिया में एक दूसरे को फोन करते ही नहीं है, या क्या होता है दिक्कत मेरे को, जबकि ज्यादा दिक्कत तो ये गूगल मीट में होती है। 1 to 1 आपको कॉल करना है, अपना बढ़िया ईयरफोन लगा के काम भी करते जाओ घर का और फेस टू फेस भी करते जाओ। तो अगर जैसे पिछली हर बार हमें शिकायत मिलती कि निशा 2 मिनट में आ गई थी, बोलती सर मेरा फेस टू फेस हो गया। 2 मिनट में फेस टू फेस हो जाता है? कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, समझ में नहीं आता है। आप अगर आपको बात कुछ समझ में आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर्सनल उस पर मेरे नंबर पे करके बता सकते हो, अगर सबके सामने नहीं बता रहे तो फिर मैं उन लोगों को फेस टू फेस में शामिल ही नहीं करूंगा।
सिंसियर लोगों को एक दूसरे का फेस टू फेस दे दूंगा, वो करें, क्योंकि फेस टू फेस इतनी अच्छी प्रोसेस है कि 1 घंटे आप लगातार इंग्लिश बोलते हैं। एक सवाल कर रहा है, एक जवाब दे रहा है, फिर दूसरा सवाल कर रहा है। कायदे से ऐसा होना चाहिए दोस्तों, अगर आप फेस टू फेस अभी भी गलत समझ बैठे तो ए सवाल करेगा, बी जवाब देगा, फिर बी सवाल करेगा, ए जवाब देगा, दोनों वर्ब बदलते चले जाएंगे। और 10-15 सेंटेंस यू के साथ 10-15 क्वेश्चन करने के बाद ही, शी, वी, नॉन लिविंग, दे, चिल्ड्रन, एक से एक सब्जेक्ट है वो सब रखें आप। फ्यूचर सिंपल का फेस टू फेस बहुत ईमानदारी से कर ले। सर WH यूज कर लें इसके साथ? अभी इसके साथ WH नहीं यूज करना है, वो पिछली बार हमने इकट्ठा फेस टू फेस दिया था। इसमें जो अभी अभी हमने किया बस वही करना है, लेकिन हमने इतनी देर में एक ही राउंड खेला यू से। फेस टू फेस में क्या होता है, इतनी देर में आपके 15-20 सेंटेंस बन जाते हैं। सर लिसा का जो सेंटेंस था उसको लोग ऐसे पूछते हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी, लाइक दैट, वुड लगाते हैं कई बार। अभी नहीं, अभी उस पर नहीं आए, थोड़ा और इंतजार कीजिए, कीप पेशेंस, यू विल गेट इट वेरी सून। अभी आपको विल का प्रयोग ही करना है, यू हैव टू यूज विल। So should we conclude? It is 34 past 8, 35 past 8. शेल केवल उसके अलावा कहीं नहीं बनाएंगे क्या? शेल अपन लोग यूज नहीं करते हैं बेटा। हाँ, बोलचाल की भाषा में अब तो नहीं यूज करते, कोई भी नहीं यूज करता, कोई नहीं यूज करता, देख लेना। केवल प्लेज में यूज होता है शेल। सर एक्चुअली तुम यार ये कुछ करो ना यार, अपने नेटवर्क कुछ समझ में नहीं आता और आवाज इतनी तेज आती खरखराती हुई। जैसे उसने तो अपना सुधरवा लिया मोबाइल, निधि ने तुरंत 1-2 दिन में। वॉइस खूब तेज रहती है, क्लियरिटी बिल्कुल नहीं रहती है। व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ लेना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Deepika? Sir, when will I give my